Hallelujah. We welcome everyone this morning once again to our online Sunday service. आप सभी को एक और बार हमारे ऑनलाइन सेवकाई में स्वागत करते हैं। And we have been talking about specifically about marriage for the past couple of months. Pastor, can you repeat, please? Yeah, we have been specifically talking about marriage for the past couple of months. Is my voice coming through? I can hear now. Yeah, I can hear you. Okay, now go ahead. Yeah, I can hear you now. Yeah, please go ahead. Yeah. So we've been talking about marriage for the past couple of months. पिछले कुछ महीनों से हम जो है शादी के बारे में या विवाहित जीवन के बारे में बात कर रहे थे। We've been talking about how marriage is actually a blessing and a promise from God for all of us. हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार वैवाहिक जीवन या शादी परमेश्वर के वचन के अनुसार एक आशीष और एक वायदा वचन के अनुसार पूरा होता है। But in order to receive that blessing the way God wants us to receive it, there are certain conditions God requires us before. परंतु जिस प्रकार से वो वायदा और वो परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए परमेश्वर कुछ चीजों के बारे में जो है वचन में कहता है। So we have to be in the right condition in order to get married. एक सही कंडीशन में होना या सही वर्तमान में होना बहुत जरूरी है ताकि हम विवाहित जीवन में प्रवेश कर सके। I want you to go back and listen to the other teachings before this one, where we have gone deep into specifically the requirements for man in order to get married and find a wife. मेरे पिछले इतवार के जो सेवकाई के वीडियोस को आप जरा YouTube में वापस देखना, जहां पर मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप पर जो है पुरुष को क्या-क्या चीजों में तैयारी होनी चाहिए या क्या-क्या चीजें उन्हें देखना चाहिए जब एक दुल्हन को या उनकी पत्नी को जब वो ढूंढ रहे हैं, क्या-क्या चीजें देखना चाहिए उसके बारे में मैंने उल्लेख किया गया है। And one thing we clearly understood is that the woman, the wife, is the supernatural help from God for man. और एक चीज जो हमने समझा वो ये है कि पत्नी जो है या दुल्हन जो है वो पुरुष के लिए परमेश्वर के द्वारा बनाई गई एक अद्भुत एक मददगारी स्त्री है कर जो है हम वहां पर हमें समझ आता है। And today and last week we focused on what are these supernatural qualities of the woman. और जो है पिछले हफ्ते हमने ये जो अद्भुतकारी खूब स्त्री के क्या-क्या है या दुल्हन के क्या-क्या है उसके बारे में हमने सोच विचार किया। And we have started reading Proverbs chapter 31. Stop there, Pastor. You started reading Proverbs 31? Yeah, we have started reading Proverbs chapter 31. Amen. हमने नीति वचन उसके 31वां अध्याय को हम पढ़ना शुरू किए। And there we have all these supernatural qualities that a woman is supposed to have in order for man to say, I have a blessing from God. देखिए उस अध्याय में जो है स्त्री को वो सारे अद्भुत स्वभाव वहां पर उल्लेख किए गए हैं जो एक दुल्हन पे एक स्त्री के जीवन में होना जरूरी है। So now these are supernatural qualities, means they are things that you cannot do on your own as a natural woman. देखिए एक साधारण स्त्री होते कारण एक साधारण पत्नी होते कारण ये कार्य जो है आपसे हो नहीं सकता। ये एक अद्भुत चमत्कारी चीजें या खूबियां जो है जो परमेश्वर ने यहाँ पर उल्लेख किया गया है। Now you might be able to do some of them to some degree, but to do them the way the Bible speaks about a woman, you need God's intervention in your life. देखिए ये कहे गए हुए चीजों में से आप कुछ चीजें कर सकते होंगे परंतु सब नहीं कर पाएंगे, परंतु ये पूरा करने के लिए परमेश्वर का एक बहुत बड़ा हाथ और अनुग्रह जो है आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। And for this to happen in this way, in a supernatural way, you need the involvement of the husband and the wife both together.
और ये एक चमत्कारी रूप से, एक असाधारण चमत्कारी रूप से ये चीज को पूरा होने के लिए जो है पति और पत्नी का दोनों का सहयोग और साथ मिलकर आना बहुत जरूरी है। So, in other words, the husband and the wife both have to put their faith on what God says and not what they feel or what they see with their eyes. देखिए, इसीलिए जो है पति पत्नी को परमेश्वर की आवाजों को सुनना और उस पे भरोसा रखना जरूरी है, ना कि जो वो देखते हैं, जो वो महसूस करते हैं। You see, when we receive Jesus Christ, we receive him by faith in the word of God. देखिए, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं या हम सुनते हैं, तब हम विश्वास के द्वारा जो है परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हम स्वीकार करते हैं। The Bible says that the moment we repent of our sins and we surrender to Jesus Christ, our sins are washed away. देखिए, पवित्र वचन ये कहता है कि उस समय पर जब हम अपने पापों को कबूल कर परमेश्वर के हाथ और मसीह पे हम समर्पित करते हैं, तो हमारे पापे धुल जाते हैं। And then God at that moment, the Bible says, he sees us as completely blameless. और देखिए, उस समय पर परमेश्वर हमसे ये कहता है कि वो उस समय पर हमें जो है पूरी तरह जो है कोई दाग या धब्बे के बिना जो है वो हमें देखता है, ताकि कहने के लिए कुछ नहीं है, ब्लेमलेस व्यक्ति होकर जो है परमेश्वर हमें देखता है। Now, this word blameless actually means to be righteous. देखिए, कोई गलती नहीं, ब्लेमलेस का मतलब यह है कि राइचियस यानी कि एक धर्मी पुरुष। Dharmikta, yeah, dharmikta. So this is what we have to believe that happens with us the moment we accept Jesus Christ as our only Lord and Savior. ये इसीलिए हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो क्षण समय पर या वो समय पर जब हम यीशु मसीह को अपना खुदा परमेश्वर होकर स्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आती है और परमेश्वर किस प्रकार हमें देखते हैं। Now, this righteousness is not something you will see with your eyes. देखिए, ये जो धार्मिकता जो है, ये अपनी आंखों से आप देख नहीं पाओगे। You will not feel anything in your body. आप अपने शरीर में जो है इसे कुछ महसूस नहीं कर पाओगे। They will not be affecting your emotions about who you are. देखिए, ये आपके इमोशंस को या आपके सोच को आप जिस प्रकार महसूस करते हो उसमें कोई बदलाव नहीं लाएगा। But the faith you put in this verse will only work when you trust that what God says is true. जो है, परंतु जब आप परमेश्वर का वचन क्या कहता है उससे भरोसा रखते हो, उस पर विश्वास रखते हो, वो आपके जीवन में बदलाव लाता है। Now, why am I explaining these things before we go into the topic? क्यों मैं ये चीजों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं जब हम विषय की ओर प्रवेश करने से पहले? Because you have to have faith in the word of God in order to receive salvation. क्योंकि आपको जो है पवित्र वचन में विश्वास होना जरूरी है, ताकि आप जो है मोक्ष पाए, सैल्वेशन या मोक्ष पा सको। When God says, I forgive you, you have to believe that he actually forgives you. क्योंकि जब परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तब आपको ये विश्वास के साथ स्वीकार करना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे पापों से क्षमा किया है। So when God says in the Bible these things we will read about the woman, you as a man has to believe that this is possible for your wife. देखिए, जब पवित्र वचन में जो है पत्नी के बारे में, ये सारी गुण के बारे में कहा जाता है, एक पुरुष होने के नाते जो है आपको उस चीजों में विश्वास रखना है कि मेरी पत्नी से ये चीजें हो सकता है। And you as a wife have to believe that God will make you successful, will make you an able person in all these qualities. और जो है पत्नी होने के नाते उन स्त्रियों को जो है ये बात को विश्वास रखना है कि परमेश्वर मुझे मदद करेगा, मुझे वो काबिलियत देगा, ताकि मैं इन सारे चीजों में जो है स्थिर होके खड़ी रह सकूं। If you only have faith in what you see and what you hear, you will never completely enjoy the blessings that the Bible has for us. देखिए, आप विश्वास के बिना विश्वास के साथ अगर बाइबल पढ़ोगे, तभी ही बाइबल में लिखे हुए वो सारे वचन जो है आपके जीवन में उसके
क्रिया, उसके काम जो है वो पूरा करेंगे। So you have to completely forget what you have seen and heard regarding your wife till today. इसीलिए जो है आपकी पत्नी के बारे में आपने क्या सुना है, क्या सोचा है, उन सारी चीजों को आपको भूलना है आज तक के, अभी तक। And you have to believe what the Bible says about the wife that God has brought into your life. परंतु पवित्र वचन क्या कहता है आपके पत्नी के बारे में, जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में अभी ले आए हैं, उसके बारे में जो है आपको सोचना है। And wives have to forget everything they have heard negative about themselves, either from their husband, from other people, or from themselves. और पत्नी को जो है वो सारे गलत चीजों को या बातों को जो उन्होंने अपने पत्नी के द्वारा या बाहर के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा या अपने आप से जो सुना है, उन सारे चीजों को जो है उसे भूलना होगा। And the wife has to believe that what the Bible has says about the wife is true in her life. और पत्नी को ये और स्त्रियों को ये विश्वास रखना होगा कि पवित्र वचन जो स्त्रियों के बारे में कहता है वो हकीकत है, वो सच है, कर जो है उसे विश्वास रखना होगा। Now, last week we started something where I made the man confess something to the wife and the wife to say something to the husband. देखिए, पिछले हफ्ते मैंने पुरुषों को कुछ चीजें कबूल करने के लिए कहा पत्नी की ओर, और पत्नियों को कुछ चीजें कबूल करने के लिए कहा पुरुषों की ओर। We will do this every week हम ये हर हफ्ते करेंगे, because this is a very important exercise for you to see where your faith actually is. और जो है ये बहुत ही एक बहुमूल्य एक एक्सरसाइज है या बहुमूल्य कार्य है, जहां पर हमारा विश्वास कहां पर है उसे परखने के लिए जरूरी है। By the time we are done with these exercises every week, your faith will be aligned to the word of God. देखिए, जब ये विषय की समाप्ति में आएंगे तब जो है हमारा विश्वास जो है पवित्र वचन के साथ रूबरू, साथ मिलकर आएगा। Now, if any of you are ministers and you are doing counseling for marriages before they get married or after they get married, देखिए, अगर आप में से कोई पास्टर है, मिनिस्टर है, अगर आप शादीशुदा या जो शादी करने वाले दूल्हा दुल्हन को शादी के पहले अगर आप उनसे काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो then these confessions are very important because they will make the mind be in the truth that is in the Bible. देखिए, ये जो कन्फेशंस है या ये जो कबूल जो करने वाली चीजें जो है, ये बहुत ही जरूरी है, ताकि ये इनके दिमाग में जो है ये सारी चीजें जो है बैठता है। See, as a husband, you are the most valuable thing in your wife's life. देखिए, एक पति होने के नाते आपकी पत्नी के जीवन में आपका दर्जा सबसे श्रेष्ठ है। You can either build her or destroy her. आप एक तो उसे बना सकते हो या फिर उसे नाश कर सकते हो। And the wife also can either build the husband or destroy him. और पत्नी भी एक तो अपने पति को बना सकती है या फिर उसे पूरी तरह नाश कर सकती है। And this has to be based on the word of God and not what you have experienced so far in your life. देखिए, ये पवित्र वचन के आधारित पर होना जरूरी है, ना कि आपके जीवन के अनुभव के अनुसार होना जरूरी है। So if you are having trouble in your marriage right now, अगर अगर आप अपने शादीशुदा जीवन में तकलीफ अनुभव कर रहे हैं अभी के समय पर, get into the word of God पवित्र वचन पर प्रवेश करना बहुत जरूरी है। and believe what the word says and not what you are feeling or seeing. पवित्र वचन क्या कहता है उस पर विश्वास रखें, ना कि आपको जो महसूस हो रहा है और ना आपको जो लगता है। So let's go to Proverbs chapter 31. नीति वचन उसका 31वां अध्याय में हम ध्यान लगाए। Now here, like I did last week, I will first read from the King James Version and then I will read from the International Standard Version. देखिए, सबसे पिछले हफ्ते के समान पहला मैं जो है किंग जेम्स वर्जन से इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसी का ट्रांसलेशन जो मैं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन से भी पढ़कर आपको सुनाऊंगा। So first I will read verse 10, 11 and 12. 10, 11 और 12वां कलाम हम पहला पढ़ेंगे। In both the versions.
दोनों ट्रांसलेशंस में जो है हम पढ़ेंगे। and then brother can read it in Hindi. आमेन, आमेन। उसके बाद मैं हिंदी में इसे पढ़ूंगा। So 10, 11, and 12, Proverbs chapter 31. Who can find a virtuous woman? For a price is far above rubies. The heart of the husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. Now I will read the International Standard Version. Who can find a capable wife? Her value far exceeds the finest jewels. Her husband has full confidence in her. As a result, he lacks nothing of value. She will bring good to him, never evil, every day of her life. आमेन। हिंदी में हम पढ़ेंगे नीति वचन 31वां अध्याय, उसका 10वां, 11वां और 12वां कलाम। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होगी। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला की व्यवहार करती रहे। Amen. Now, in verse 10, it says, who can find a virtuous woman? Amen. 10वां अध्याय पहला भाग, भली पत्नी कौन पा सकता है। And we spoke last week of this meaning of the word virtuous. पिछले हफ्ते जो है हमने भली के अर्थ को जो है हमने समझने की कोशिश की। And one of the meanings was that she's like an army that comes in the time of need. देखिए, भली का एक मतलब हमने समझा कि जो है वो एक सेना की समान है, जब जरूरत होता है तब वो दौड़ चली आती है। Now let's go to Proverbs chapter 12 verse 4. नीति वचन 12वां अध्याय का 4वां वचन में जब हम ध्यान लगाते हैं, here once again it talks about a virtuous woman. यहां पर एक और बार जो है भली व्यक्ति के, भली स्त्री के बारे में जो है यहां पर बात किया जाता है। So the first part says, a virtuous woman is a crown to her husband. यहां पर जो है पहला भाग इस प्रकार कहता है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। Amen. So she is a crown for the husband. जो है वो अपने पति का मुकुट है। In other words, you wear her on your head to show off who you are. और इसका मतलब यह है कि आप जो है अपनी अपनी पत्नी को अपने सिरहाने में सजाते हो और दुनिया को दिखाते हो कि वो कौन है। This is what the Bible says about the wife. और जो है ये पवित्र वचन जो है स्त्रियों के बारे में या पत्नियों के बारे में जो है पवित्र वचन कहता है। So men, you need to show off your wife. जो इसीलिए पुरुषों अपनी पत्नी को जो है आपको दिखाना, आपको जताना जरूरी है दुनिया के सामने। And women, wives, you have to be worthy of being shown off. और पत्नियों, स्त्रियों, आपको जो है आप उस लायक होने चाहिए। वो शब्द थोड़ा कठिन शब्द है, परंतु आप उस लायक होने चाहिए ताकि पति आपको जो है दुनिया के सामने जो है मुकुट के समान सजा सके। This is the quality of a virtuous woman that has been walking close to God, close to Christ, and now is getting married. देखिए, ये एक खूबी है उस भली पत्नी का जो परमेश्वर के साथ चलती है और जो है अब उसका विवाह होने जा रहा है। Now, we will look at the opposite of what happens to a woman who does not believe she is a crown for the husband. हम जो है इसका सीधा उल्टा सोचेंगे, जब पत्नी ये विश्वास नहीं रखती कि मैं अपने पति का मुकुट नहीं हूं, तब क्या होता है? There's a second part of verse 4 in Proverbs 12. It says, but she that maketh ashamed is a rottenness in her bones, in his bones. दूसरा भाग 12वां अध्याय उसका 4वां वचन नीति वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। Now let's link this back to Proverbs 31 verse 12. हम जो है इसको
प्रोवर्ब्स नीति वचन 31वां अध्याय के 12वां कलाम के साथ जब हम इसे मिलाते हैं, पढ़ते हैं, So it says, she will do him good and not evil all the days of her life. वह अपने जीवन के सारे दिन में उससे बुरा नहीं वरन भला के व्यवहार करती है। So let us understand what it means that she will do good to him all the days of her life. इस वाक्य को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो जीवन के सारे दिन में जो है वो बुरा नहीं परंतु भला का व्यवहार करेगी। इसका मतलब क्या है? In other words, she will support the husband no matter what the husband decides to do. इसका मतलब यह है कि वो अपने पति को मदद करेगी या सपोर्ट करेगी। वो हस्बैंड जो भी निर्णय ले, जो भी अपने जीवन में करे, उसके लिए वो उसके साथ सहभागी होगी। In other words, she is a team player. इसका मतलब यह है कि वो जो है एक ही झुंड में, एक ही खेल की एक सदस्य है जो साथ में उस खेल को पूरा खेलेगी। The husband is the captain of the team. जो है उस टीम का कैप्टन हस्बैंड हुआ करता है। And the wife is a player in the team that supports the captain. और जो है पत्नी जो है वही टीम के जो है वही टीम के एक टीम प्लेयर है जो अपने पति को, कैप्टन को जो है वो सपोर्ट करती है। See, many women nowadays are not team players with the husband. देखिए आजकल के समय पर, आजकल के दिनों में अनेक पत्नियां, अनेक स्त्री जो है वो एक टीम प्लेयर नहीं है अपने पति के साथ। They want to be the captain. उनको खुद को जो है कैप्टन बनना है। And the husband, when he sees that the wife is a team player, he will want to show her off. देखिए जब पति ये देखता है कि मेरी पत्नी एक टीम प्लेयर है, तब जो है उसको जो है उसको अपनी दुनिया के सामने दिखाना वो पसंद करता है। Now, these first three verses, verse 10, 11, and 12, go together. ये पहला 3 वचन जो है 10, 11 और 12 जो है वो साथ मिलकर जाता है। So the first one says that she is full of virtue. पहला वाक्य कहता है कि वो एक भली स्त्री है, एक भली पति कौन है? Verse 11 says that the husband has total trust in her. 11वां वाक्य हम पढ़ते हैं कि पति को जो है पूरा विश्वास अपनी पत्नी पर है। Full confidence means he trusts that what she will decide will be good for him as well. और जो है वो ये विश्वास रखता है कि जो भी वो करेगी, मेरी पत्नी मेरे जीवन में करेगी, वो भला के लिए करेगी। वो पूरा विश्वास उसके जीवन में है। And that she will bring good to his life and not evil. और जो है वो उसके जीवन में जो है भला काम लेकर आएगी, नाश के लिए, बुरा के लिए कुछ ना ले आएगी कर जो है पति विश्वास रखता है। That means she will not bring any kind of shame to the name of the husband. इसका मतलब ये है कि पत्नी जो है अपने पति के नाम पर कोई आक्रोश आने के लिए या कोई बुरा नाम आने के लिए जो है वो कभी अनुवाद नहीं करेगी, वो कभी उसके लिए अवसर ना देगी। You see, women have to understand that the moment you get married, you represent your husband. देखिए पत्नियों को, स्त्रियों को ये चीज को देखना और मानना बहुत जरूरी है कि जो क्षण समय पर आप जब अपने पति के साथ, एक पुरुष के साथ विवाहित हो जाते हो, तो जो है आप उसके जीवन में उसको अपने जीवन में उसको दिखाते हो। आमेन। In other words, your husband is the one who has to answer for you as a wife. देखिए आपके पति को आपके लिए उत्तर देना पड़ता है क्योंकि आप उनकी पत्नी हो, इसीलिए वो उत्तरदायित्व लेते हैं और वो उत्तर देने वाले बनते हैं। I have explained this before, the difference between in Hindi, the word responsibility, we have a few words, and one of them is jawabdari, and the other one is what is it? There's a couple of words. Anyway, jawabdari is one of the words we use in Hindi. Amen. हिंदी के परिभाषा में जो है जवाबदारी स्वीकार करना या जवाबदार बनना अपनी पति की, और वो लफ्ज को जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और अनेक और भी अर्थ, दूसरे लफ्ज भी जो है इस वचन के या फिर इस लफ्ज के साथ मिलकर आता है। So when man, the husband, takes responsibility of the wife, he is the one who has to answer for the wife. देखिए जब पति
अपनी पत्नी के जवाबदारी को स्वीकार करते हैं, तो पति जो है अपने पत्नी के हर चीज के बारे में जो है वो उत्तर देने के लिए जो है जबरदस्त, मतलब पति को उत्तर देना जरूरी बनता है, जवाब देना. जवाब देना। Yeah, to be responsible, to give an answer, to Amen. speak for the wife. Amen. Amen. पत्नी के लिए जो है पति को जवाब देना जरूरी है। When Eve in the Garden of Eden ate from the forbidden tree, who did God ask for an answer from? देखिए, जब हवा या ईव जब ईदन बगीचे में जब उन्होंने वो फल जो खाने से मना किया था, जब उन्होंने वो खाया और अपने आदम को भी दिया, तब परमेश्वर जब नीचे आए तो किससे परमेश्वर ने उत्तर मांगा? He did not first go to the wife, परमेश्वर पहले पत्नी के पास नहीं गए, even though God knows that the wife is the one who first ate it. परमेश्वर ये जानता था कि पत्नी ने सबसे पहले वो फल को खाया। God asked Adam, परमेश्वर ने आदम से सबसे पहला प्रश्न पूछा, because Adam is the one that first received the law of God, क्योंकि आदम थे जो परमेश्वर के कल्पनाओं और कानून को पहले स्वीकार किए, and Adam is the one responsible to present that law to his wife. और आदम का जवाबदारी था, जिम्मेवारी था कि वो अपनी पत्नी को इस कानून को सबसे पहले बताए। So if your wife right now is not someone who is virtuous, अगर आपकी पत्नी अभी एक भली औरत, एक भली स्त्री नहीं है, and if she's not someone that you can have full confidence in every decision she makes, और अगर आपको उन पर पूरा विश्वास नहीं है कि वो हर एक निर्णय जो वो खुद लेती है वो सही नहीं है, तो and if you don't find that she adds good to your life all the time, but she's actually adding evil, अगर आपको ये विश्वास नहीं है या अगर आपको ये लगता नहीं है कि वो भला चीजों को आपके जीवन में जो है ऐड कर रही है, ना कि बुरा आपके जीवन में कर रही है, अगर इस बात पे आपको यकीन नहीं है, and if you cannot show her off, अगर आप उसको दुनिया के सामने दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो then I want to tell you that probably as a man you have some responsibility in this. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक पुरुष होने के नाते जो है आपको कुछ जिम्मेदारी जो है इन चीजों पे लेना बहुत जरूरी है। You have to portray the right things to her so that she can become what she's supposed to be according to the word of God. जो है कुछ सही चीजों को जो है आपको उसके जीवन में दिखाना, बताना जरूरी होगा, ताकि वो समझे कि उसका दर्जा पवित्र वचन में क्या है। And women have to be willing to receive that correction. और पत्नियों को जो है वो गलतियां सुनने के लिए और समझने के लिए जो है वो ताल्पर्य भी होनी चाहिए उसे, कि वो स्वीकार करे वो करेक्शंस को अपने जीवन में। I have met too many women who are married who only speak evil of their husbands and their family. देखिए, मैं बहुत सारी स्त्रियों को अपने जीवन में मैंने बात किया है, मैं मिला हूं, जो केवल अपने परिवार के बारे में, अपने पति के बारे में बुराई कहती है, and they do not bring good things and are not supportive of the family they are in now. कोई भले चीजों के बारे में बात नहीं करती है, ना कि अपने परिवार के लिए जो है वो जो है मदददायक है, वो सहायता करने का एक मनोभावना नहीं है, परंतु बुराई कहने का एक आदत। Many times they go into a family, a new family where they get married, and all they create is drama. देखिए, अनेक दफा जो है वो एक नए परिवार में वो जाते हैं और वहां पर वो केवल जो है केवल ड्रामा जो है वो उस नए परिवार में प्रवेश करने के बाद वो करते हैं। They behave in ways where the husband can really not have confidence in her decisions. देखिए, वो इस प्रकार से बर्ताव करती है कि पति को उनके निर्णय और उनके स्वभाव को देखकर जो है कोई भरोसा या कोई विश्वास जो है अपनी पत्नी पर नहीं होता। Now, as we go through all of these characteristics, I am criticizing the husband and the wife.
जब हम इस वचन के एक एक वचन को जब हम पढ़कर आगे जाएंगे, मैं जो है पत्नी और पत्नी दोनों को जो है एक समान यहाँ पर जो है उनसे बात करूंगा, उन्हें क्रिटिसाइज करूंगा, या फिर उनके गलतियों को, उनके अच्छी चीजों को जो है यहाँ पर जो है उल्लेख करूंगा। I want you to feel, both husband and wife, I want you to feel where you are so wrong in the way you are thinking right now. Amen, amen. Pastor, you were stuck there. I couldn't hear anything. Yeah. Sorry. I want both husband and wife, as we read these things, that you realize how wrong you are compared to the word of God. देखिए, जब पति पत्नी दोनों मिलते हैं, तब मुझे ये आपको महसूस करना है कि कहां कहां पर आप पति पत्नी के नाते पर कहां कहां पर आप गलत हो पवित्र वचन के अनुसार। And I want you both to believe what the word says that can happen. और मैं आप दोनों को मैं ये चाहता हूं कि पवित्र वचन आपके बारे में क्या कहता है, उसके बारे में जो है वो आपको विश्वास करना है, या वो आपको विश्वास के साथ देखना है, उसके बारे में मुझे वो आपके जीवन में करना है। Now let's go to Titus chapter 2. टाइटस के दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करें। Here it gives a little more deeper explanation about how women need to behave when they are married. यहाँ पर जो है एक गहरा एक अर्थ जो है यहाँ पर बताया जाता है कि पत्नियों को किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए जब वो शादीशुदा होते हैं। And especially he's talking about elder women. यहाँ पर जो है जो बुजुर्ग महिला के बारे में, या फिर जो उम्र में बड़ी है, उनके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। So maybe not necessarily only wives, केवल पत्नियों के बारे में नहीं, but women who already have lived life. परंतु पत्नियां या फिर स्त्रियां जिन्होंने जीवन को थोड़ा जिया है। And if you are a young woman, you should be striving to achieve these goals in your life as well. अगर आप एक नौजवान स्त्री एक स्त्री है, तो आपको जो है आपका जीवन को एक अच्छे तरह जीने का एक मकसद आपके अंदर होना जरूरी है। Now, if this is in the Bible, अगर ये पवित्र वचन में लिखा गया है, just like everything else in the Bible that God tells us to do, बाकी और सारे वचनों के अनुसार जो परमेश्वर हमें कहने के लिए मानने के लिए कहते हैं, if it is there, is because it is possible. ये इसीलिए है क्योंकि ये पॉसिबल है, या ये हो सकता है। And it is possible through the power of Jesus Christ in our lives. और ये जरूर हकीकत में पूरा होगा क्योंकि यीशु मसीह के बल और ताकत के अनुसार अपने जीवन में जो है ये संभव है। So as we read all these things, if you are failing at any of these things in your life, you need to call upon Jesus to complete it in your life. अगर आप इन चीजों में अगर अपने जीवन में हार रहे हो, तो आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना है, बुलाना है, ताकि कि वो आपको मदद करे। In this chapter actually talks about men and women. ये वचन में, ये अध्याय में पति पत्नी दोनों के बारे में जो है पुरुष और स्त्री के बारे में उल्लेख किया गया है। But here we focus today right now on only the women. आज हम केवल पत्नी के बारे में जो है यहाँ पर बात करेंगे। So it says, likewise, older women, verse 3, are now to show their reverence for God by their behavior. They are not to be gossips or addicted to alcohol, but to be examples of goodness. Go ahead. Amen. दूसरा अध्याय, उसका तीसरा कलाम, तीतोस का अध्याय, उसमें तीसरा वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि किसी प्रकार बूढ़ी स्त्री का चाल चलन पवित्र लोगों से हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। Amen. Amen. Verse 4, they should encourage the younger women to love their husbands, to love their children.
ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे और अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। And verse 5, to be sensible and pure, to manage their households, to be kind, and to submit themselves to their husbands. Otherwise, the word of God may be discredited. और पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। Okay. This is very important, this last part right now. Otherwise, the word of God may be discredited. इसका आखिरी वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। Now, if you are a wife and a woman of God, अगर आप एक पत्नी हो और परमेश्वर की एक स्त्री हो या परमेश्वर के संतान हो, and you don't show these qualities in your life, और आपके जीवन में आप इस गुण विशेषताओं को नहीं दिखाते हो, then through your life, the word of God shows that it has no power. इसका मतलब आपके जीवन से ये दर्शाया जाता है, ये दिखाया जाता है कि पवित्र वचन को ताकत नहीं है, या पवित्र वचन जो है वहां पर निंदा हो रहा है। So when you live according to the word of God as a wife, you bring credit and power to the word of God so that others will start to follow Jesus Christ. जब आप पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने शुरू हो, तो वो जो है पवित्र वचन के नाम को ऊंचा करता है और उसको जो है ऊंचा दर्जा देता है, क्योंकि आप पवित्र वचन के अनुसार अपना जीवन को जी रहे हो। When you do these things correctly, then you become that crown of glory, the glory of God that your husband will want to wear on his head. जब ये चीज आप सही तरह से करते हो, तब जो है आप उस न्याय का मुकुट, वो जो मुकुट जो है आप अपने पति जो है अपने ऊपर, अपने सर पर जो है वो सजाते हैं। Now, for time's sake, I will not go deeper today into this. अब समय के कारण जो है मैं इसके गहराई पे जाना नहीं चाहता। But I want us to go through the confessions for the verses we have read so far. जो है मैं वो जो हम स्वीकारिता वाक्य या कबूल करने के कुछ वचन जो है हमने पढ़ा, उसके साथ जो है मैं कहना चाहता हूं। So first, now the men, you have to look at your wives, if your wife is there with you, if not afterwards, and repeat what I'm saying. पति, अगर आपकी पत्नी आपके साथ है, बगल में बैठी है, तो ये चीजें अपनी पत्नी को देखकर कहे। So the men will say, "You are virtuous, and a crown I want to show off." Amen. You are virtuous and a kind of crown that I want to show off. Amen. Should I translate in Hindi? Yeah, please do. Okay. पति अपने पत्नी से ये कहेंगे कि तुम एक भली स्त्री हो और वो मुकुट हो जो मुझे दिखाना है। You are full of resources and you are priceless. जो है आप जो है बिना कोई you're priceless और पूरी तरह मूल से गुण विशेषताओं से भरी हो। Very good. Now the woman will say to the husbands, अभी पत्नियां जो है अपने पति को देखकर ये कहेंगे, I am like a crown that you want to show off. मैं उस मुकुट के समान हूं जो आप दिखा सकते हो। I am priceless for you and I am full of resources. मैं जो है बहुमूल्य हूं और पूरी तरह गुण विशेषताओं से भरी हूं। Next one, men will say to the wives, अभी जो है पति अपनी पत्नियों से कहेंगे, I have full confidence in your decisions. मैं तेरे सारे निर्णयों पर पूरा विश्वास रखता हूं। And that is why I will lack nothing good in life. और इसीलिए जो है मेरे जीवन में मैं कोई भलाई का कमी मेरे जीवन में ना होगी। Now women say to your husband,
पत्नियां अपने पतियों को कहे, because you completely trust me, क्योंकि आप पूरी तरह मुझ पर विश्वास रखते हो, I make good decisions मैं अच्छे निर्णय लेती हूँ। so that you lack nothing good in your life. इसी कारण से आप अपने जीवन में कोई भलाई चीजों का कमी ना महसूस करें। Now, the next one, men tell your wives, पुरुष या पति अपने पत्नी से ये कहे, you bring me good and never evil with your words and actions. तुम भलाई मेरे जीवन में ले आती हो, ना कि बुराई, अपने स्वभाव से, अपने कार्यों से। And women now say to your husband, पत्नियां अपने पति से कहे, my words and my actions always bring you good and not evil. मेरे वचन, मेरे वाक्य और मेरे स्वभाव और मेरे कार्य जो है वो आपको भलाई लेकर आएंगे, ना कि बुराई। Now, how do you feel right now after doing these confessions? ये वचन को कबूल करने के बाद आपको किस प्रकार महसूस होता है? Many of you will think, well, when you're confessing these things, you're not believing what you're confessing. देखिए, अनेक लोग ये कहेंगे कि जब आप इस बात को कबूल कर रहे हैं पर इन वचनों को आप विश्वास नहीं रख रहे हैं, Because what you're seeing with your eyes is not what you are saying with your mouth. क्योंकि आप जो अपने आंखों से देख रहे हो वो नहीं आप अपने जबान से कबूल कर रहे हो। In other words, you will realize that maybe you are lying when you're saying these things. अनेक चीजें शायद आपको ये विश्वास हो रहा, आपको ये लगता होगा कि आप झूठ कह रहे हो जब इस चीजों को आप कबूल कर रहे हो। But when you are confessing these things, you are transforming your mind to believe what God says is possible for you. जब आप इन चीजों को कबूल करते हो और आप जब इन चीजों को ऐलान करते हो, आप अपने दिमाग को और अपने आप से ये कह रहे हो कि ये चीज मेरे जीवन में संभव हो सकता है, परमेश्वर का वचन इसी प्रकार मेरे जीवन में पूरा होगा। In other words, you as a man are believing in the supernatural power of the Word of God. इसका दूसरे मतलब अर्थ में जो है, आप पवित्र परमेश्वर के असाधारण चमत्कार पर जो है पूरी तरह विश्वास रखते हो। And the wife, you are also believing that if God has spoken this about the woman, it is possible in your life supernaturally. अगर अब पत्नी आप भी ये विश्वास रखते हो कि परमेश्वर ने अगर ये आपके जीवन में कहा है तो आपके जीवन में भी जो है सुपरनैचुरली, अद्भुत रीति से जो है ये चीज परमेश्वर पूरा करेगा। So as we do this every week, I want you to understand that your life, your married life is going to be completely transformed. देखिए, जब हम ये हर हफ्ते ये करेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और मेरे साथ ये विश्वास करें कि आपका विवाहित जीवन जो है पूरी तरह बदलेगा। And so when we do this, once again, I want you to focus on the idea that what you are seeing and what you are hearing is not the reality according to God. मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, वो परमेश्वर के जो हकीकत नहीं है, जो आप जो देख रहे हो। The truth and the absolute truth that is according to God's word. जो हकीकत है, जो सच है, वो परमेश्वर का वचन है। So don't try to change God's word according to your reality. आपके हकीकत के अनुसार परमेश्वर के वचन को बदलने की कोशिश ना करो। You have to submit yourself to the word of God and let the supernatural change you. आपको जो है परमेश्वर के वचन के आधारित अपने जीवन को समर्पित करना होगा और परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन को बदले। Then all these blessings we are reading about will become real in your life. और ये सारे आशीष है जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके जीवन में जो है वो पूरा होकर भला के लिए पूरा होगा। In the same way, the only way you can completely feel the washing of your sins is simply by putting your faith in what God has written. देखिए, आपके पापों से पूरी तरह धुल कर आशीष पाना, वो आपके जीवन के
will only become real when you believe what God has spoken or written. और वो तभी पूरा होगा जब आप परमेश्वर के वचन को पूरी तरह विश्वास रखोगे. You will only enter heaven if you truly believe that the work of Jesus Christ on the cross is more than enough to completely save you. देखिए, आप तभी स्वर्ग में प्रवेश करोगे जब आप पूरी तरह ये विश्वास रखोगे कि पर यीशु मसीह ने जो सूली पर किया वो आपके जीवन के लिए सबसे महान कार्य था. When you pray, you will only have the confidence that God hears your prayers if you believe that God wants to answer your prayers. जब आप ये विश्वास रखोगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है और वो मेरी प्रार्थना को उत्तर देता है, तब जो है वो चीज आपके जीवन में पूरा हकीकत में होकर बदलता है. When you completely believe that God loves you according to the Bible, you will be able to run to Him with everything in your life. जब आप पूरी तरह ये विश्वास रखते हो कि परमेश्वर मुझे पूरी तरह विश्वास रखते हैं और मेरी मदद करेंगे, तब आप जो है उसकी ओर दौड़ने के लिए उसकी ओर आप दौड़ पाओगे. And you will only go to Jesus Christ when you understand that without Jesus Christ you will die in your sins. और जो है आप यीशु मसीह की ओर भागते जाओगे क्योंकि आपको ये पता है कि यीशु के बिना जो है आपके जीवन में आप खो जाओगे, आप अकेले पड़ जाओगे. Just like salvation is a supernatural work, these changes in our lives are also a supernatural work. जिस प्रकार मोक्ष जो है एक असाधारण शब्द लफ्ज है अपने जीवन में, ये सारी खूबियां और चीजें भी एक असाधारण लफ्ज और अनुभव है अपने जीवन में. So I encourage you with this, if you want to change your life and your marriage, you have to go to Jesus Christ, who is the worker of supernatural things. मैं आपको इन वचनों के साथ जो है एनकरेज करना चाहता हूं, आपको उत्तेजना देना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में एक साधारण अनुभव आना है तो ये इस वचनों को विश्वास करें और इस वचनों को अपने जीवन में कहें. Thank you for joining us today. हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे.